memorize them word to word. All right. Okay, then on the next page, general pregnancy dietary advice. इसको tick कर लें, ठीक है, ये भी you should know it. Then we have this table 2.1. इसको आप mark कर लें, इसमें से भी question आ सकते हैं, ठीक है. Then on the next page, in fact on page number 19, आपके पास summary of booking investigation, the table 2.2. तो आप उसको भी star लगा लें, that's a UQ as well, ठीक है. Okay, फिलहाल जो हुआ है थोड़ा सा, it's just that page number 19 पे table 2.2 हुआ है, और पेज नंबर 17 पे टेबल 2.1 एंड ओवरव्यू ऑफ एंटीनेटल केयर जो बुलेट पॉइंट्स है, ठीक है, on page 15 बस. And then I'm going to keep moving forward, ठीक है. This video will hopefully get uploaded so then you guys can watch it later on, ठीक है. So the rest of this chapter you kind of just have to read really well, ठीक है. Page number 23 के ऊपर gestational diabetes mellitus है, उसके जो रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट है ना, उसको आपने करना है. ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसका, दिस होल पैराग्राफ. सो जस्ट मार्क इट कि ये आपने इसके रिस्क फैक्टर्स, ये जो सारे है ना, और स्पेशली जो OGTT का टाइमिंग है 24-28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 16 to 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन वगैरह, ये सब तो ये आपने याद करना है, ठीक है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. इसके अंदर make sure that you do all the self assessments. पूरी जो book में self assessment है ना सारी, make sure you do all of them because they really help you understand. So next chapter number 3, ठीक है. Chapter number 3 is very important. Excuse me, not chapter number 3, that's chapter number 4. फिलहाल chapter number 3 में सिर्फ एक चीज करनी है, वो है, where is it, I've lost it, amniotic fluid. 37 page number 37 के ऊपर amniotic fluid वाला ये जो portion है, ये सारा करना है. इसको आप 2 स्टार लगा लें, ठीक है. और हाँ, इस चैप्टर में सिर्फ यही है, और साथ में इसकी जो एंड पे ये दिया हुआ है ना, लाइक समरी, आप ये जो सेल्फ असेसमेंट वाली जो केस हिस्ट्री वगैरह, ये आप अगर रीड कर लेंगे, इट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है. पूरा चैप्टर आपको इवन रीड करने की भी जरूरत नहीं है इफ यू डोंट वांट टू, बिकॉज़ इट्स ऑल स्टफ दैट you've done before, like the fetal heart circulation and all of that, fetal blood circulation, all of that, ठीक है. So that's it for this chapter. Then the next chapter is a really important one, the assessment of fetal well-being, ठीक है, chapter number 4. So इसमें you need to do, I would highly recommend just doing all of it really well. But ये जो headings है ना सारी, like diagnosis and confirmation of viability in early pregnancy, predetermination of gestational age वगैरह, ये headings आपको पता होनी चाहिए, because they'll ask you, like question में आता है कि how मतलब fetal assessment or well-being आप कैसे वो करेंगे, और इसके अंदर से भी question आते हैं, like ये जो gestational age वगैरह वाला है, fetal size and growth का है, तो वो आपसे पूछते हैं कि क्राउन रम्प लेंथ कब तक बेस्ट टाइम है मेजर करने का, फिर जो abdominal circumference versus head circumference के साथ जो growth fetal growth restriction होती है, उसके बारे में भी questions आते हैं. So just make sure that you do this whole chapter really like properly, ठीक है. And then आपके पास ultrasound के uses के question भी आता है, वो भी इसकी heading से answer हो जाता है, uses of ultrasound in pregnancy, और yeah, ठीक है. फिर आगे जो amniotic, पेज नंबर 51 पे मैं पहुंच गई हूँ. यहाँ पे amniotic fluid volume जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 होते हैं, एक मैक्सिमम वर्टिकल पूल होता है, एक amniotic fluid index होता है, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए कि इसके पैरामीटर्स क्या है, मतलब सेंटीमीटर में भी आपको याद होना चाहिए, और इसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या चीज, ठीक है. फिर आता है हमारे पास CTG, कार्डियोटोकोग्राफ. कार्डियोटोकोग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको पूरे को आप बहुत बड़ा सा स्टार लगा दें, ठीक है ना. Just give me a minute.
All right, I'm back. Can you guys hear me? Okay, so awesome. Okay, so there's just an announcement to be made. Okay, we're going to be starting the PEDS session, a PEDS and gynae session on 16th May, inshallah, or medicine 1 का भी session है, ठीक है? So इन 3 subjects के session start होने वाले हैं, inshallah. And उसके अलावा जिन्होंने WhatsApp group अभी नहीं join किया, तो they can contact us on WhatsApp on our number, जो 0313 has 0313-602-7971, all right? Okay. मैं एंड पे सेशंस के बारे में बता दूंगी, ठीक है? अभी फिलहाल मार्किंग कर लेते हैं and then near the end we'll just discuss like what is going to be covered in the sessions, ठीक है? All right. We were on page number 52, ठीक है? 10 teachers OBS की. तो important CTG features, ये जो 4 bullet points हैं, baseline rate, baseline variability, accelerations और decelerations, ये भी आपने जो है करने हैं, ठीक है? ये अच्छे से you should know them because ये बार बार UQ भी आता है, आपकी OSMI भी आता है कि what are the 4 parameters of a CTG, ठीक है? और इनको आपने अच्छे से understand भी कर लेना है. तो basically this whole CTG वाला portion is very important. Next page 54 पे आ रहा है biophysical profile. ये भी आपने याद करनी है biophysical profile, ठीक है ना? उसके बाद जो ये डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस आ रही हैं, ये आप एक दफा रीड जरूर दे दें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बट ये उतना ज्यादा हाई यील्ड नहीं जितना जैसे सीटीजी वगैरह और पीछे जो अल्ट्रासाउंड था वो था, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. The next one is prenatal diagnosis. ठीक है, prenatal diagnosis के अंदर पेज 64 के ऊपर टेबल 5.1 है, इसको मार्क कर लें, ये अच्छे से करना है आपने याद, ठीक है? फिर आपने कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, पेज 65 पे कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, इसको टिक कर लें. और एमनियोसेंटेसिस नेक्स्ट पेज पे आ रहा है और कोर्डोसेंटेसिस नेक्स्ट है, तो इनको भी टिक कर लें. और ये जो पेज 68 के ऊपर जो टेबल 5.2 है ना, ये इसको टिक कर लें. और जब आप रीड कर रहे होंगे ना टेक्स्ट, तो इसके अंदर आप सारा ऐड कर लीजिएगा, जो भी टेक्स्ट में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं इन तीनों टेस्ट के, वो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना? Then we have Down syndrome and other aneuploidies. So isko tick kar lein, you need to know how to identify Down syndrome. Ultrasound ke upar, for example, knuckle translucency ka difference aata hai. And then there are the quadruple tests जो screening के लिए use होते हैं. And then ultimately हम लोग chorionic villus sampling वगैरह करते हैं. So you need to know like the sequence. कि अगर like early on pregnancy में आई है तो फिर क्या test होना है, अगर बाद में आई pregnancy में तो फिर क्या test होना है, all of those things you need to know. Okay. And then after that, you can read it if you like, मतलब ये new developments वाला part just for your interest, but we've never been asked anything from there. Okay. In fact, page number जो 70 है, उसके other abnormalities वाला जो portion है, उसके अंदर बिल्कुल end पे 3D and 4D ultrasound का लिखा हुआ है. तो वो एक दफा UQ में 1 mark का question आया था कि 3D और 4D ultrasound के uses बताएं. तो उसको आप टिक कर लें so that you can memorize visualization of cleft lip, cleft palate and corpus callosum की integrity को देखना. So this is just one point over here page 70 पे, ठीक है? तो ये chapter यहाँ खत्म हो गया है. Next one is antenatal obstetric complications. इसमें पेज नंबर 80 के ऊपर जो माइनर प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी हैं, इन सब के नेम्स आपने करने हैं, मतलब हेडिंग्स, ठीक है? और जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूक्यू है, तो ये आपने पूरा करना है, ठीक है? बाकी सिर्फ आप इन माइनर प्रॉब्लम्स के जो माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके नेम्स कर लें, ठीक है? फिर नेक्स्ट आ रहा है प्रॉब्लम्स ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स. ये बेशक आप स्किप कर दें if you want to, you can read it if you want to. फिर next page 84 पे हमारे पास आ रहा है venous thromboembolism.
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे पहले भी एक यूटीआई वाला जो है पेज 83 पे यूटीआई है, उसको टिक कर लें, उसको अच्छे से आपने रीड करना है। बट द वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पार्ट जैसे डीवीटी वगैरह, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पूरा आपने पढ़ना है। इसके रिस्क फैक्टर्स का जो टेबल है 85 पेज नंबर के ऊपर, उसको भी आप मार्क कर लें अच्छे से। और और आगे पेज 86 के ऊपर पल्मोनरी एम्बुलस जो है उसको कैसे देखते हैं, कौन से स्कैन्स कराते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी में डी डाइमर क्यों नहीं कराते, और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और वारफेरिन हम नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में, ये पता होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। पोस्टपार्टम आप वारफेरिन दे सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हैं। सो दीज आर समथिंग यू नीड टू नो। और ये फिर आ रहा है पेज नंबर 87 पे। I highly doubt that any sane person could memorize this, but you can have a look at it, I guess, if you were interested in how the risk factors change. ठीक है। वैसे आपको ये जो पहले मैंने टेबल बताया था ना, page 85 वाला, risk factors for thromboembolic disease, it should be sufficient for you to answer all the questions, ठीक है। फिर next substance abuse का है, you can skip it if you like. page 89 पे oligo and polyhydramnios, this is very 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 important. इस पे like आप 2 या 3 stars लगा लें, ठीक है। इनके tables भी सारे important है, इसका text भी full important है, और ये बार बार UQ में आता भी है। And I think इस year इसके जो causes or something first year के paper में भी आए थे, which I looked at as well. Embryo का question आता है ना, so this they had something about oligo and polyhydramnios. Page number 90 के ऊपर then we have fetal malpresentations. Breech presentation is very important, इसको पूरा मार्क कर लें। इसकी आपने परसेंटेज भी याद करनी है। हमारा आई थिंक MCQ आया था कि it occurs in 3 to 4% of term pregnancies, ठीक है। तो ये वाला MCQ भी आया था। और ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर ये जो टेबल है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वाला, ये भी टिक कर दें। फिगर 6.3 के अंदर ये जो 3 टाइप्स ऑफ ब्रीच हैं ये भी आपने याद करनी है, ठीक है। और ये पिक्चर्स भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज ये ऑस्ट्री में भी बहुत उनका फेवरेट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पेज 92 के ऊपर कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन एंड रिस्क्स ऑफ ECV, तो ये भी आप टिक कर लें। फिर मोड ऑफ डिलीवरी आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। टेक्निक मैनेजमेंट ऑफ लेबर इज इम्पोर्टेंट। इसकी आगे जो टेक्निक लिखी हुई है इसको आपने हेडिंग्स बस याद कर लेनी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बटॉक्स, डिलीवरी ऑफ लेग्स एंड लोअर बॉडी, एंड देन डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स, बिकॉज ये स्पेशलाइज लोग इसकी डिलीवरी कर सकते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू इट, ठीक है। और फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रीच है, हाँ ये भी सब करना है। एंड अदर फीटल मैलप्रेजेंटेशंस वो ना आगे लेबर वाले जो चैप्टर है उसमें ज्यादा अच्छी लिखी हुई है, जो फेस प्रेजेंटेशन और वो सब है, ब्रो प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग। तो यहाँ से यू कैन रीड इट, बट जो असल में करना है वो उस चैप्टर में से मैं आपको मार्क करा दूंगी। देन पेज 95 पे वी हैव पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी मार्क कर लें। और नेक्स्ट है पेज 96 पे वजाइनल ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। And page 97 पे rhesus isoimmunization, this is very very important, like 2 या 3 stars. और मुझे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो it was all right, हमने मैम की स्लाइड से किया था मोस्टली ये rhesus isoimmunization, and I think अर्शद चौहान में भी इसका जो क्वेश्चन है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप ये मार्क कर लें। All right, पेज 100 के ऊपर टेबल 6.2 है, ये जो एंटी डी रीसस टाइट्रेशन है इसको टिक कर लें, we need to memorize this as well. And yeah, that's it for this chapter, ठीक है। और ना रीसस ये जो एंटी डी एंटीबॉडीज है ना, पेज 99 के ऊपर जो एंटी डी एंटीबॉडीज है ना देनी है, इसका आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंगल डोज दे रहे हैं तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं। बाय द वे 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स यहाँ लिख लें बिकॉज इस बुक में नहीं लिखा हुआ। और ये जो बार बार ये क्लेहार टेस्ट का मेंशन किया हुआ है, अब ये आउट ऑफ डेट हो चुका है। वी डू एंटी कूम्स एंटीबॉडीज, या तो अगर आप वाइवा में क्लेहार बोलेंगे तो यू विल प्रॉब्ली गेट रोस्टेड, तो जस्ट डोंट यू नो, इस बुक का ये बस थोड़ा सा इशू है, वरना इट्स ऑल राइट। प्लीज ये रिपीट कर दें दोबारा, मैनेजमेंट जो है और 1500 वाला। या आप जब एंटीनेटल प्रोफाइल एक्सेस करना होता है ना,
we've already studied, like you guys have already done like erythroblastosis fetalis और जो RH में हमने वो anti-D antibodies देनी होती हैं, ठीक है? तो अगर हम 28 weeks पे single dose दे रहे हैं या फिर 2 doses दे रहे हैं 28 and 34 weeks पे, तो we give 1500 international units, ठीक है? उसके अलावा फिर ये जो बॉक्स है पेज 99 पे मैनेजमेंट वाला, इसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है और इसमें एक टेस्ट लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड द क्लेहर टेस्ट, बट या हम लोग अब ये आउटडेट हो चुका है, वी डू द कोम्स एंटीबॉडीज, ठीक है? तो दिस जस्ट लाइक यहाँ पे थोड़ा ये चेंजेस करने, दैट्स एंड देन दिस चैप्टर लाइक पूरा ही आपने ये रिसर्च वाला बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना? Yeah, that's it. Then we move on to the next chapter, which is multiple pregnancies. Multiple pregnancy के अंदर आपने you have to understand on page number 106 Vistra or zygosity or chorionicity and amnios, anyway you have to understand exactly what it means, ठीक है? तो इसके last year जब मैंने sessions किए थे तो I had like different diagrams to make like this everyone understand. So even this time when we have sessions, I'll be sharing those diagrams with you inshallah. ठीक है? Next we have complications of multiple pregnancy. आप इसका list बना लें कि कौन कौन सी complications होती हैं, because ये वो पूछते हैं UQ में, ठीक है? फिर आगे 108 पेज के ऊपर ये twin to twin transfusion syndrome है, this is very important, so make sure you do that. फिर इसकी ट्रीटमेंट भी इसके ना ट्रीटमेंट के पॉइंट्स लिख लीजिएगा, जैसे 3-4 पॉइंट्स हैं, ये हमारी ऑस्मी में भी आया था और ये वैसे भी UQ भी आ सकता है. Then next on page 110 antenatal care को आप read कर लें, and 111 पे intrapartum management इधर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लिखी थी, बट लेबर के चैप्टर में अगेन वो बताएंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज में डिफरेंट सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं और उन बेबीज जो दोनों बेबीज हैं उनको कैसे डिलीवर करना है, ठीक है? इधर सिर्फ जो पेज 112 के ऊपर ये इंटरनल पोडालिक वर्जन है ना, आपने सिर्फ इसको रीड करके अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों कर रहे हैं, या फिर ये लाइक व्हाट्स द पर्पस या हाउ इज इट डन, बस थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना, दैट्स प्रीटी मच इट. वरना आप इसको रट्टा भी लगा सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना? तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. देन मूविंग ऑन टू प्री टर्म लेबर. प्री टर्म लेबर में आप आगे जाते जाएं और पेज नंबर 121 के ऊपर, ठीक है, कॉजेज ऑफ प्री टर्म लेबर आपने पढ़नी है, इनकी हेडिंग्स अच्छे से याद कर लेनी है, ये इसी तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्री टर्म लेबर. फिर इसकी आगे जो है मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर, इनके ड्रग्स के नेम, ठीक है? और MCQ पर्पसेस के लिए यू हैव टू नो कि जो बेस्ट ड्रग है वो कौन सा है, ठीक है? एंड उसके अलावा फिर जो कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है, इसका आपको थोड़ा स्केड्यूल याद होना चाहिए कि कैसे देते हैं, ठीक है? तो there's a whole schedule, like आप 2 doses दे सकते 24 hours में भी, या फिर आपने 3 doses per day देनी होती है. It's the whole thing, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे when we're studying it, but you just have to know कि fetal lung maturation के लिए जो steroids देना उसका कैसे क्या उसका schedule है, और फिर antibiotics भी recommended होती हैं. And then management of pre-prom, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ना इस बुक में इतना ज़्यादा नहीं लिखा जितना आपको पता होना चाहिए. सो जस्ट मेक श्योर कि इसको थोड़ा आप ओवर रीड करें. प्री प्रॉम के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसकी मैनेजमेंट स्पेशली, ठीक है? और रिस्क किस चीज़ के होते हैं, कोरियोमनाइटिस का रिस्क होता है. लाइक हर चीज़ में जब भी आप रिस्क लिखें ना, तो आप उसको करके लिखेंगे रिस्क टू मदर, रिस्क टू फीटस, इस तरह करके अगर आप लिखेंगे तो आपके ज़्यादा पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है? And then prediction of preterm delivery, ठीक है? तो उसमें ultrasound measurement of cervical length is the most important way you can predict a preterm delivery. I think ये MCQ भी आता है. और next page के ऊपर है कि prevention of preterm delivery कैसे करेंगे. इसमें progesterone tick कर लें, लेकिन cervical cerclage जो है इसको like double tick कर लें. This is very important. Types of cerclage की table पे को भी you can just like read it. You don't have to know it properly, but you can just read it, ठीक है?
And that's it for this chapter. Then we have hypertensive disorders of pregnancy. This is like the most important chapter, like one of the most important chapters ever. ये पूरा ही chapter आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? इसमें वो सारा pre-eclampsia, eclampsia और वो सारी चीजें हैं. तो इसमें अब मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, इसका हर टेबल ही करने वाला है और इसकी हर डायग्राम आपने अच्छे से करनी है, ठीक है? There's nothing that you have to leave from this literally. तो इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से जो है मार्क कर दें. इसके चैप्टर के पेज नंबर 140 के ऊपर ये फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी है और ये भी आपने बहुत अच्छे से करनी है. कॉजेज ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आपको सारी पता होनी चाहिए. एंड विच पेज 142 पे जो प्रेगनेंसीज एट रिस्क ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ये वाला बॉक्स है, ये पता होना चाहिए. सर्वेलेंस जो है ये भी क्वेश्चन आता है तो ये भी पता होना चाहिए. सो बेसिकली दिस होल चैप्टर यू हैव टू डू इट रियली वेल इनसाइड आउट, ठीक है? तो आई कांट, मतलब इसमें अब हर चीज को मुझे मार्क करवाना पड़ेगा. सो दिस होल चैप्टर जस्ट बड़ा सा स्टार लगा दे. देन चैप्टर नंबर 10 के ऊपर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी. अच्छा, अब इसमें मैं आपको यूक्यू बता देती हूँ. इसमें से वो हिट एंड मिस वाली बात है कि ना मैं आपको बता दूं कि चलो ये नहीं करना, लेकिन वो कभी कभार पेपरों में आ भी जाता है. फॉर एग्जांपल रीनल डिजीज की ये जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग है पेज 148 पे, ये भी आई थिंक एक दफा आई है. तो और उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे है 150 के ऊपर डायबिटीज मेलाइटिस है. इसमें ऑल राइट सा लिखा हुआ है. हमने इसको भी मैम की स्लाइड से किया था. हमारे प्रॉफ में इसकी उसकी वो आई थी, पैथोफिजियोलॉजी आई थी 4 मार्क्स की. तो दैट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ अस डिड नॉट रियली स्टडी, बिकॉज हम अक्सर पैथोफिजियोलॉजी फाइनल ईयर में थोड़ी सी ना हमें होता है कि हमें पता है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिर हमें पता चलता है कि कितना पता है, ठीक है ना? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक एज वेल. तो पेज 152 के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज ऑन प्रेगनेंसी, मतलब ये जो पहले 151 के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन डायबिटीज है ये भी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन प्रेगनेंसी ये भी इंपॉर्टेंट है. जेस्टेशनल डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है या फिर ओजीटीटी वगैरह वो कब कराना है और कैसे कैसे कराना है, ठीक है? और उसकी क्या वैल्यूज आती हैं वो आपने मिलीग्राम पर डेसीलीटर में भी याद करनी है और मिलीमोल पर लीटर में भी याद करनी है. ऑल राइट. देन फिर थायराइड डिजीज आ रहा है. थायराइड डिजीज में एक एमसीक्यू आया था कि हाइपोथायराइडिज्म इज फाउंड इन अराउंड 1% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. ये 1% वाला आपसे वो आई थिंक एमसीक्यू था, तो जस्ट टेक दैट फॉर एमसीक्यू. ये हाइपोथायराइडिज्म के अंदर लिखा हुआ है. बाकी आपको ये रीड कर लीजिएगा थायराइड डिजीज वाला ना. तो लिटरली ये जो मेडिकल कंडीशन है इट्स अ बिट ऑफ अ हिट एंड मिस. बट आगे जो हार्ट डिजीज आ रहा है ना, I did not do parathyroid disease and adrenal diseases and pituitary tumors in pregnancy. I didn't do those, and मुझे कोई फर्क नहीं लगा कि अगर कर लेती तो कुछ बेहतर हो जाता. I don't think you guys need to do it. फिर हार्ट डिजीज आ जाता है. That's very very important. Page 155. इसकी भी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आपको आनी चाहिए सारी. And you need to know how to manage it antenatally. Page 156 पे high risk cardiac conditions कौन सी हैं, fetal risks of maternal cardiac disease क्या है. फिर आगे management of labor in women with heart disease, you need to know this really well as well. फिर आगे risk factors for development of heart failure in pregnancy, ये भी जरूरी 157 पे जो है. फिर ये ischemic heart जो specific conditions में ischemic heart disease जरूरी है, and mitral and aortic stenosis, ठीक है? ये आपने ये भी टिक कर लें. आगे Marfan syndrome and pulmonary hypertension. I did not read it, but if you guys want to go ahead, we didn't do these. Neurological disorders जो आगे आ रहे हैं, I didn't do this either. Hematological abnormalities भी नहीं किए थे. Then gastroenterology, liver. अच्छा, liver के ऊपर जो है I did gallstones. Page 166 पे gallstones, because ये pregnancy में इतने ज़्यादा common है. I did read that. And then प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस को मैंने रीड किया था, लेकिन ये मेडिसिन में ज्यादा बेहतर कवर हुआ है. सो यू कैन जस्ट डू दीज डिजीजेस इन मेडिसिन रियली वेल, और फिर आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? फिर आगे जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस हैं, स्किन डिजीज है, यू डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दोस. सो दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर के एंड पे देयर वाज जेस्टेशनल डायबिटीज,
थायराइड को आपने रीड देना है, हार्ट डिजीज अच्छे से करना है। एंड व्हाट्स नॉट मेंशन्ड ओवर हियर वाज एनीमिया इन प्रेगनेंसी, वो अरशद चौहान में बहुत अच्छा लिखा है। तो इस चैप्टर के साथ कहीं भी, इस चैप्टर की बिगनिंग में बेशक आप लिख लें कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी आपने अरशद चौहान से करना है। उसमें आपको एनीमिया की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को एनीमिया कंसिडर करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड देन उसकी मैनेजमेंट फर्दर लिमिट्स देते हैं, फिर हम IM लगाइए किस स्टेप पे क्या एनीमिया इन प्रेगनेंसी रीड करना है, ठीक है। तो या बस that's all I can say about this chapter, that you just have to read it for MCQs. And then the next chapter is labor. This is a very important and one of the more complicated chapters of obstetrics, ठीक है। इसमें you need to know maternal pelvis के जो पेज 194 पे हूँ मैं, maternal pelvis के जो inlet, mid pelvis और outlet के जो diameters है ना, AP and transverse, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पिक्चर में बना हुआ है pelvic brim और ये pelvic outlet और सब, इसका जो सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है, you have to know these. फिर pelvic shape के अंदर सिर्फ you need to memorize the names of the shape, जो 4 shapes ना, gynecoid, android, anthropoid and platypaloid, you just need to know the names. फिर fetal skull के आगे हमारे पास diameters आते हैं, वो है पेज नंबर 200 के ऊपर, ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये 4 बेबीज हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। Then we have the physiology of labor. Just go ahead and read that. Next, page 202 के ऊपर we have normal labor. Up from this point onwards, most of the things are very important. तो इसको आप 2 stars लगा लें, ठीक है। तो diagnosis of labor, stages of labor, mechanism of labor, सब बहुत important है। mechanism of labor में इसकी headings मतलब mainly जो engagement, descent, flexion, internal rotation, ये सब बहुत important है, ठीक है। इसकी YouTube पे आप लोग वीडियोस भी बहुत सारी देख लीजिएगा, just to understand what the process is, but at the end of the day आपको इसकी headings अच्छे से याद होनी चाहिए to answer any question. Then page 205 पे we have management of normal labor. इसकी भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ना आप खुद ही points बना के लिख लीजिएगा, because इस book में थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो once you're done with the whole chapter, make sure you make your own notes. It'll make your life easier, ठीक है। तो fetal assessment in labor जो 206 पेज के ऊपर है, वो बहुत ज़रूरी है। जो tables हैं इसके, fetal assessment options in labor, indications for continuous electronic fetal monitoring, page 207 पे, ये boxes आपने अच्छे से कर लेने हैं। पेज 208 के ऊपर पार्टोग्राम शुरू हो रहा है, पार्टोग्राम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो सारे 209 पे बना हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, मदर्स बायोडेटा और cervical dilation, amniotic fluid, length of cervix, blah blah blah. तो ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब पेज 210 के ऊपर की लर्निंग पॉइंट्स जो हैं, इनको आप टिक कर लें, ठीक है। की लर्निंग पॉइंट्स आप ऐसा करें कि जो टेक्स्ट पढ़ने से पहले आप ये की लर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो टिक कर लिया करें, सॉरी रीड कर लिया करें, एक्सक्यूज मी। तो आप रीड कर लेंगे तो आपके लिए वो टेक्स्ट को के अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। समरी इज आस्क्ड के 11 नहीं करना, 11 को रीड करना है एमसीक्यूज के लिए। 11 पिछला वाला था ना, या ओके। फिर आ गया नेक्स्ट, मैनेजमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज, मैनेजमेंट ड्यूरिंग सेकंड स्टेज, ये सब करना आपने अच्छे से। फिर इमीडिएट केयर ऑफ न्यूनेट रीड कर लें, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज अच्छे से आना चाहिए। यूक्यू आ रहा है ये पेज 212 के ऊपर, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, ये यूक्यू है। फिर नेक्स्ट पेज पे 213 पे अब नॉर्मल लेबर है, ये भी 2 स्टार्स कर लें, 2 या 3 स्टार्स, ठीक है। इसमें नेक्स्ट 214 के ऊपर management of abnormal labor में poor progress in first stage of labor. तो the most common cause of poor progress in first stage of labor is dysfunctional uterine activity. चाहे वो primary हो या multi para हो, this is the same मतलब thing कि dysfunctional uterine activity is the most common cause, ठीक है। ये बताना चाहिए। फिर इसको हम 3 P's करके याद करते हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग वो passenger, passage and
पावर करके याद करते हैं, तो ये आप 3 P's बस वहां लिख लें ताकि यू रिमेंबर। ये नेक्स्ट है पेज 216 पे, फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ सीपीडी, ये भी आपने अच्छे से करना है, ये भी यूक्यू है। और फिर पोर प्रोग्रेस इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पेज 217 के ऊपर ये भी करना है, ठीक है। फिर की लर्निंग पॉइंट्स को टिक करते जाएं। पेज 218 के ऊपर रिस्क फैक्टर्स फॉर फीटल कॉम्प्रोमाइज इन लेबर, ये भी टिक कर लें। एंड नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पॉसिबल फीटल कॉम्प्रोमाइज, जो रिससिटेटिंग फीटस इन लेबर है, ये भी टिक कर लें। ये भी आपको वो पूछ लेते हैं ना कि यू नो फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट द मैटरनल डिहाइड्रेशन की डोसेस वगैरह, और ऑल ऑफ दैट स्टेप वाइज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। fetal blood sampling procedure, you can just read it. I don't think you need to know it that much in detail. फिर आगे प्लेस ऑफ बर्थ भी बेशक रीड कर लें, मैंने नहीं रीड किया हुआ इसको। पेन रिलीफ इन लेबर के अंदर आपको ये जो सारे एनाल्जेसिया हैं, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, इनके नेम्स पता होने चाहिए। और जो पेज 221 के ऊपर ये इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है, ये आपको टेबल अच्छे से रटा होना चाहिए। ये पहले भी यूक्यू आ चुका है और ये हमारा भी यूक्यू आया था, ठीक है। फिर पेज 222 पे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, इसके आपको नेम्स पता होने चाहिए कॉम्प्लिकेशंस के। टेक्निक बेशक ना करें, वो आप सर्जरी में कर लेंगे, और स्मॉल एनेस्थीसिया भी बेशक ना करें, ठीक है। देन वी हैव vaginal birth after C-section, जिसको हम VBAC कहते हैं। तो 224 के ऊपर relative contraindications to VBAC भी टिक कर लें। And page 225 के ऊपर malpresentations है ना, all of these you have to do really properly, ठीक है। ये सारी malpresentations हैं। और next page पे जो multiple pregnancy है, इनको कैसे deliver करना है आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर पेज 226 के ऊपर we have induction of labor, नीचे से शुरू हो रहा है। induction of labor भी आपको अच्छे से करना है। and bishop score आ रहा है नेक्स्ट 228 के ऊपर। एक तो ये indications for induction of labor है, इसको आप स्टार लगा ले, और बिशप स्कोर जो है ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। गिव मी अ मिनट। All right, we're on bishop score, या इसको मार्क कर लें। फिर पेज 229 के ऊपर methods of induction है, ठीक है। methods of induction को आप मार्क कर लें। yeah, that's it for this chapter, ठीक है ना। remember कि ये labor का chapter is a little bit tough, ठीक है। don't get worried about it, just make sure you watch like a lot of videos and a lot of resources, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। do it again and again if you don't understand it once. Next we have operative delivery. इसमें पेज 234 के ऊपर पेरिनियल रिपेयर इज इम्पॉर्टेंट। इसकी जो टेबल 13.1 है, ग्रेडिंग ऑफ पेरिनियल रिपेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका ना सर्जिकल टेक्निक आपको पता होना चाहिए। सेकंड डिग्री को कैसे रिपेयर करते हैं, थर्ड और फोर्थ डिग्री टेयर्स को कैसे रिपेयर करते हैं, सो यू नीड टू नो ऑल ऑफ दैट एज वेल, ठीक है।